Vinita. Hare Krishna. She's from Rajasthan and I just got her today. Hare Krishna. Welcome. Thank you. Actually, this is a verse from Bhagavad Gita, chapter 2, verse 20. I think it will be a continuation only. And there was one thing which I heard and it got stuck कि हमने हर चीज़ का हिसाब किताब किया है. बट एंड में जो इमॉर्टल है, जो आगे जाएगी, हमने क्या उसका हिसाब किताब सोचा है कि उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितने साल लॉन्ग टर्म, हाँ, कि हर चीज़ की आपने की है. लोग करते हैं छोटी मोटी, बट एंड में जो चीज़ जिसका हिसाब किताब ज़रूरी है, क्या हमने उसका सोचा है. हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग 70-80 में फिनिश हो जाती है. सो न जयते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य सस्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यामने शरीरे. So the soul is never born, nor does it ever die. Having once existed, it never ceases to exist. It is unborn, eternal, everlasting and ancient. It is not destroyed when the body is destroyed. So this verse kind of invites a shift in perspective, that if our deepest identity is not the body, but the eternal self, then the birth and death are just the transformation of the physical form, rather than the beginning or the end of the existence. So it does not dismiss grief, attachment, whatever we have in the physical world, but it basically gives a broader understanding of life, that at the end what is getting transformed, what is the eternal, and what is that we need to work on, so that when it gets transformed, it is in a much better form. Very good. Very good. Nice. Thank you. See, death is like going to sleep. And taking again birth in material world is like seeing a dream. It's like if we think of the eternal self, the Atma, the soul, we will not think of this hisab kitab of Janam and Mrityu. Very nice. Yes. You can read also. It's good to read, even if we don't memorize, doesn't matter. Reading and meaning is more important. Children want to do Mataji? Rashikar Prabhu, children want to recite something? You will do? You can do both also. Very good. Kariye. Everybody today. Tomorrow Sunday. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. So in Bhagavatam, the Parikshit Maharaj asking to the Sukhdev Goswami कि एक मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए, क्या उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं. तो वहाँ पे मतलब श्लोक है. आई एम गोइंग टू रिसाइट, इफ यू वांट टू रीड यू कैन टेक 215. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभ्यताम्. So in this, O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify and also remember the personality of Godhead, who is Super Soul, the controller and savior from all miseries. So there is one similar sloka which is also there. So which is like 2:36. तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान निर्नाम. तो यहाँ पे कहते हैं, ओ किंग, it is therefore essential that every human being hear about, glorify and remember the Supreme Lord, the personality of Godhead, always and everywhere. So here there are three things which is being described. So we should first remember, then glorify. ट्रांसलेट कर देंगे दोबारा. प्रभु आई थिंक आपको नहीं वो कर देंगे, दोबारा ट्रांसलेट कर देंगे. नो इश्यूज. ओके. तो यहाँ पे तीन चीजों का बताया गया है. श्रोतव्य मीन्स सुनना, कीर्तितव्य से मीन्स गुणगान करना,
श्रोतव्य कीर्तितस्य स्मर्तव्यस्य मीन्स स्मरण करना, मीन्स उसको याद करना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है हियरिंग सुनना, जो सुनना मतलब किससे सुनना। तो यहाँ पे कि उसके लिए भगवत गीता में बताया गया है, दूसरा श्लोक है, जस्ट 1 सेकंड, तत्विधि प्रणिपातेन परिपृश्चेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शनम। So it means we should hear from a spiritual master who is like inquire, like let's say, just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. So means what, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमको एक स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू हमको कुछ समझना चाहिए, मतलब कुछ नहीं, मतलब अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली हमको क्या सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ ही सुनना चाहिए, मतलब हमको अपना स्क्रिप्चर्स में जिससे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट पाए, तो हमको ऐसा सुनना चाहिए। तो हरे हरे बोल, जय हरे कृष्ण। देखिए कितने तरह के भय है इस संसार में, भय ही भय है, हर सेकंड एक भय है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काव्य व्यापा। देह का भय छूट जाएगी, दूसरी लिविंग एंटिटीज से भय, प्रकृति का भय। इसलिए भागवतम में आया, रिपीट करिए, आप अन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृह्णन् तथा सद्या विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। अल्टीमेट भय क्या है? कपड़े उतार करके सब कुछ यही छोड़ के जाना है। जन्म होती ही पता ही है। हाँ, एक्चुअली में when the new, it is little harsh to say, but when a newborn is born, it is not new life is born, a new death is born, because उस तारीख से काउंटडाउन शुरू। अब गया कि अब गया, पूरी जिंदगी इसी सत्य हाँ, कहीं से भागो आप। लेकिन आपन्नः संस्मृति घोराम, जो जना संस्मृति मतलब इस संसार चक्र में बुरी तरह से मकड़ी का जो जाला होता है उसमें मक्खी की तरह फंस गया है। यत नाम विवशो गृह्णन्, अगर विवश हो के, भगवान अपने बस का नहीं है, भगवान का नाम लेता है विवशो गृह्णन् तथा सद्य विमुच्येति। भागवतम से इमीडिएटली छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? यत बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, अधश्चोद्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवालाः अधस्य मूलानि नुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कृष्ण। यस ब्रो, हाँ बैठो बैठो गोदी में। नायम देहो देहभाजं निलोके कष्टान कामान हरते विद्विजाम ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्यं शुद्धेद यस्माद् ब्रह्मा सौख्यम त्वनं तम। क्या बात है, जय हो। Translation. My dear sons, थोड़ा पास हो ब्रो। my dear sons, this human body is not meant for working hard simply to enjoy sense pleasures like the animals that eat stool. Rather, it is meant for performing divine austerity by which one's heart becomes purified and one attains unlimited spiritual bliss. एक बार और ब्रो। My dear sons, this human body is not meant for working hard simply to enjoy sense pleasures like the animals that eat stool. Rather, it is meant for performing divine austerity by which one's heart becomes purified and one attains unlimited spiritual bliss. प्रभु जी, मुझे उतना तो समझ में नहीं आया इससे, किसी को भी नहीं आता समझ, हम सब लेकिन आपने जो समझाया उससे मेरे को जो आपने नहीं, भागवत में समझाया नहीं, है। आपने जो इस कीर्तन में जो समझाया उससे यही समझ में आया कि
हम लोग को जो लाइफ मिली है हम उसमें मतलब ऑफ कोर्स वी हैव टू डू समथिंग टू अर्न मनी टू फीड आवर फैमिली, अच्छे से पैसा कमाओ खूब कर right, but we should not spend all our time like 24 hours working day and night. वो तो सभी लोग करते हैं, like all animals also does the same thing, but if we should take some time for our like spiritual things as well. तो इसका मतलब यही है कि प्रभु जी अपने को अपना काम करते रहना चाहिए, but at the same time we should worship also. बस मुझे इतना तो समझ क्या है आता है। प्रभु की, अगर वी हैव अ चॉइस ऑफ आइदर आउट ऑफ 24 आवर्स 10% ऑफ द वर्क एज डिवोशनल सर्विस, और 20%, और 30%, और 40%, और 100%. 100 आ गया उसका आंसर दिया उसने. सो 100% हाउ टू डू. अब भगवान ने बनाया है सिस्टम, तो सोना तो पड़ेगा, कम सो लेंगे थोड़ा बट सोना पड़ेगा, प्रसाद खाएंगे, ऑफिस भी जाना है, फैमिली भी है, तो इसको 5-10% पे ही क्यों रखना डिवोशनल सर्विस को? 100 कैसे करना उसको? कोशिश. मैं भी वर्ड से ही कह रहा हूँ, आप लोग याद दिला रहे हैं तो याद दिमाग में आ रहा है. कैसे करें 100? तस्मात् सर्वेषु कालेषु. ओके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च. पर चलो दिन में कर लेगा युद्ध, अभी रात का क्या करें? जैसे माता जी ने बताया, यद करोसी यदस्नासी, जो कुछ खाता है, पीता है, देता है, करता है, तत्कुरुष्व मतर्पण. भगवान को ऑफर कर दिया. ऑफिस में गया, थोड़ी देर में भगवान आपके लिए किया, या जब आ गया तो उससे क्या होगा? शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधना. नेक्स्ट श्लोक है 928. शुभ और अशुभ दो तरह की चेन्स हैं. एक है गोल्ड की चेन और एक है आयरन की चेन, लेकिन है दोनों चेन. पुण्य करेगा तो गोल्ड की चेन, स्वर्ग तक जाएगा, स्वर्ग का शरीर मिलेगा, भोग करके वापस नीचे इधर. गड़बड़ काम करेगा तो जाएगा नरक तक जाएगा. वो सब इसी में ही है. अतल पतल सुतल तलातल रसातल, उसके फिर ऊपर बाद में हम जा रहे हैं भूर भूवर, फिर सब करते करते सत्य लोक तक है. जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक. अलग अलग लेवल में अलग अलग ब्लिस है, लेकिन सारे खत्म होने वाले हैं. ब्रह्मा जी को भी उनके 311 ट्रिलियन ईयर्स के बाद में ही वॉक्स अवे बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. उनको भी भय है, मतलब खैर वो तो इट इज फॉर नेम सेक, बट ही वॉक्स अवे. तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त को कन्वर्ट करने का ये तरीका है. हम करें. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. नाइस कृष्णा पॉइंट. प्रभु जी. थैंक यू.